Namaste students. Today I am going to discuss about the topic food preservation by irradiation. Irradiation, what is the irradiation? Irradiation is the process of providing some radiation to the food. Some radiation are provided to the food so that the food can be preserved and can be protected from the microorganism. So food irradiation is the process of exposing food to a controlled source of ionizing radiation for the purpose of reduction of microbial load, destruction of pathogens, extension of food's product shelf life, and or disinfection of the product. Indirectly, it is a method of providing some radiation to the food material so that the food can be preserved and protected and the shelf life is increased. The basic principle irradiation is known as the cold process. It does not significantly increase the temperature or change the physical or sensory characteristics of most foods. During irradiation, the energy waves affect unwanted organisms but are not retained in the food. मीन्स जब जो रेडिएशन जाती है वो सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होता है सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करती है लेकिन ये क्या फूड के अंदर स्टे नहीं करती है ये जो रेज होती है वो निकल जाती है और सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये इफेक्ट करती है मोस्ट इरेडिएट फूड इज प्रोसेस्ड बाय गामा इरेडिएशन. However, the usage of electron beam and X-ray is becoming more popular in recent years. Two things: the source of radiant energy and the way to confine that energy are important. Source means which kind of source is we are providing for irradiation, whatever X-ray, gamma ray, and the energy level of that source, the wavelength of that source is also important. During irradiation, food are exposed briefly to a radiant energy source within a shielded facility. There are three sources of radiation. First is gamma rays, X-rays, and next is electron beam. Gamma rays are emitted from radioactive forms of element cobalt-60. X-rays are produced by reflecting a high-energy stream of electron of a target substance to the food, but electron beam is similar to X-rays and is a stream of high-energy electrons. They are high electron. मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम्स जब किसी पे टकराती है जाके तो वो हाई एनर्जी पे पहुंच जाती है. हाई एनर्जी पे जब एक्टिव फॉर्म में जब पहुंच जाती है तो वो उस कंडीशन में किसी भी माइक्रोब्स को किल कर देती है. To kill bacteria in fruits and vegetables, the food is loaded into large containers called pellet carriers. तो पहले उनको pellet carriers में ले जाते हैं और उनको उसके बाद में जो भी गामा रेज होती है वो उनके ऊपर एक्सपोज की जाती है और बहुत सारी रैक्स होती है जिनके ऊपर गामा रेज उनसे पास होती है और मोस्टली ये पेस्ट को किल कर देती है. कुछ अदर फूड इरिटेशन यूज होता है उनके लिए और मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे साल्मोनेला है और पैथोजेनिक सोडोमोनास होते हैं, इन सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोबाल्ट-60 का यूज होता है. The fruits and vegetables complete their circuit in 30 to 60 minutes. They are then unloaded and taken to the processing. For example,
जो इरेडिएशन होती है वो उन पे ऊपर लोड होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो रेडिएशन होता है वो उनको डायरेक्टली फ्लो करवाते हैं, जिससे वो काफ़ी टाइम तक 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स उनको प्रोवाइड की जाती है रेडिएशन। रेडिएशन अगर उनको हम प्रोवाइड करते हैं फूड मटेरियल को, तो काफ़ी देर तक उसमें कांटेक्ट में रहते हैं, और उसमें जब कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके अंदर म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है और वो किल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रेज वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे सनलाइट होती है, ह्यूमन कैन नॉट टॉलरेट द सनलाइट फॉर ए लॉन्गर टाइम। ओके, सिमिलरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो, ये बैक्टीरिया, फंगाई या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्स रेज, गामा रेज, इन रेज को काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको जब हम लॉन्गर टाइम के लिए जब हम उनको देते हैं, ये ट्रीटमेंट देते हैं एक्स रेज का, गामा रेज का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो किल हो जाते हैं। Types of food on which the irrigation is conducted: by fruits and tubers of the plants, fresh fruits and vegetables of plants, fish, seafood, cereals, nuts, oil seeds, pulses, dried food, raw poultry and meat, dry vegetable, spices, condiments, dry herbs and herbal teas, dried food, miscellaneous food and feeds. What is the application? It is used for the prevention of foodborne illness. It is used for the food preservation and shelf life extension. It is used for control of insects, delay in sprouting, and sterilization. इनके अलावा अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन भी हम माइक्रोब्स को देते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ जो होती है वो 216 नैनोमीटर के अराउंड होती है, और ये तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब, ये इनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है इस रेडिएशन को। और जब ये प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो डीएनए की कंपोजिशन में होते हैं, जब ये रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनके अंदर जर्मिसाइडल एक्टिविटी शो होती है, मीन्स वो किल हो जाते हैं। This ultraviolet radiation is responsible for killing of the microorganisms. उसके अलावा कुछ जर्मिसाइडल लैम्प्स होते हैं जो जर्म्स को किल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक होते हैं, और उनके अंदर जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स होते हैं जो, और लो प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प्स होते हैं जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं 254 नैनोमीटर की। जब ये रेंज में जब माइक्रोब्स अगर इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो किल हो जाते हैं। So all the things are dependent on the irradiation and the wavelength of the irradiation. तो जैसे हम सनलाइट को ऑब्जर्व को टॉलरेट कर सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर इसकी वेवलेंथ कम कर दी जाए तो हम इसको नहीं टॉलरेट कर सकते। सो इसी तरीके से जो कम वेवलेंथ की जो भी रेज होती है उनको माइक्रोब्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो किल हो जाते हैं। और ये जो लैम्प्स होते हैं वो बहुत सारी शेप्स में, साइज में, पावर में अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टडी। उसमें सबसे ज़्यादा है टाइम का, कि लॉन्गर एक्सपोजर टू ए गिवन कंसंट्रेशन मोर इफेक्टिव द ट्रीटमेंट। जितना ज़्यादा हम उसमें लॉन्गर टाइम तक हम रेडिएशन अगर किसी फूड मटेरियल को देते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो सेफ रहता है, उतना ही ज़्यादा उसमें माइक्रोब्स का रिमूवल होता है। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ द रेज reaching an object will depend on the power of the lamp and the distance from the lamp to the object. तो जो भी इंटेंसिटी होती है, मीन्स जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ
सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को किल करेगी। अगर वेवलेंथ अगर बैक्टीरिया के लिए सूटेबल है तो फिर वो ग्रो कर जाएगा। अगर वेवलेंथ कम है तो बैक्टीरिया को किल कर देगी, जर्मिसाइडल एक्टिविटी शो करेगी। और उसके अलावा उस जो लैंप होता है, लैंप का पावर भी अगर हाई होता है, वो भी उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा लैंप का पावर होगा उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन हम बोलते हैं कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ दैट लाइट इज हाउ मच। जो लाइट को जो इंटेंसिटी होती है वो उसको पेनिट्रेट, वो माइक्रो रिंग को कितना पेनिट्रेट कर पाता है, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे डिजोल सॉल्ट स्पेशली आर एंड हैव सम इफेक्टिव रेज, वो देखो बहुत ज़्यादा जो साल्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं वो जो रेज की इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर इनकी वजह से कम हो जाती है। कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, ग्रीसी मेटल्स होते हैं, वो रेज को कट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं, जो रेडिएशन होते हैं उनके अंदर कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उन रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं। और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, जो रेज को माइक्रोब्स की तरफ आने नहीं देती। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स के जो अल्ट्रावायलेट लैंप्स होते हैं वो बहुत सारा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी आंखों को कुछ देर में ही खराब कर सकती है। और इसके अलावा एरिथमिया, रेडनिंग, ये सब कुछ भी कॉज कर सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो जर्मिसाइड इफेक्ट शो करते हैं, ये जो रेडिएशन होती है, दे शो जर्मिसाइड मीन्स दे directly kill the microorganism. So that is the main effect on the microorganism. And similarly, capsulation or clumping of bacteria increases their resistance. अगर उनके अंदर कैप्सूल्स फॉर्मेशन होती है तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है। जो रेज होती है उनको लंबे टाइम तक उनको रखा जाता है इन माइक्रोब्स के लिए, ताकि जो जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाए। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।